میں نے کبھی محبت نہیں کی، کسی پر یقین نہیں کیا، پر میں آپ پر یقین کرنے لگی ہوں۔ یہ جذبہ مجھے آپ پر یقین کر کے ملا ہے اور میں یہ یقین کھونا نہیں چاہتی کبھی بھی۔ وجدان کی خاموشی نے اسے بولنے کی ہمت دی تھی، جس پر وہ اپنی دلی کیفیت اور اپنا یقین اس پر پکا کرتی بولی تھی، آئی لو یو۔ افق کی باتوں نے اس کے دل پر اثر کیا تھا۔ وہ بھی تو ایک ایسے ہی ہمسفر کی تلاش میں تھا جو صرف اس کا ہی ہو اور کسی کا نہ ہو۔ لہجے میں محبت کو پا لینے کی خوشی لیے وہ افق کو کہتا بولا تھا، پر اچانک اپنے بنائے گئے ہارٹ شیپ سلاخوں میں بندھی لڑکی کو دیکھ کر اس کے لب سکڑے تھے اور کچھ وقت پہلے آئی خوشی کہیں گم ہو گئی تھی۔ پاپا آ رہے ہیں وجدان، میں پھر آپ سے بات کرتی ہوں۔ سہراب صاحب کو آتے دیکھ افق نے وجدان کو پھر بات کرنے کا کہتے بغیر جواب کا انتظار کیے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ یہ کیا کر رہا ہے تو وجدان؟ وہ تو بہت معصوم ہے، میں کیسے اس کا دل توڑ سکتا ہوں؟ جیسے اس کے باپ نے تمہاری ماں کا توڑا تھا، بالکل ویسے ہی توڑنا ہے تمہیں بھی اس کی بیٹی کو۔ وجی اسے بھی بالکل ویسے ہی تڑپانا ہے جیسے اس نے تمہاری ماں کو تڑپایا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو نا، تمہیں یہ کرنا ہوگا ہر حال میں۔ افق سے بات کرتے وجدان کو اپنے عمل پر شرمندگی ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ کیسے ایک معصوم کا دل توڑ سکتا تھا جس نے کبھی کسی چڑیا کو تکلیف نہ پہنچائی تھی۔ وہ کیسے ایک جیتی جاگتی خوبصورت چڑیا کو برباد کر سکتا تھا؟ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں سے لڑ رہا تھا کہ اسے آئمہ بیگم کے کہے الفاظ یاد آئے تھے جو 11 سال کی عمر سے آئمہ بیگم اس کے کانوں میں کسی صورت کی طرح پھونکتی آئی تھی۔ نہیں وجدان، وہ معصوم ہے، وہ معصوم نہیں ہے، بنتی ہے بس۔ اپنے دل و دماغ کی جنگ سے لڑتے ہوئے وجدان کا سر درد سے پھٹنے کو ہوا تھا، جس پر وہ اپنی ٹیبل پر موجود ساری چیزیں زمین بوس کرتا چلایا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ وجدان کے کیبن سے شور کی آواز سنتے ورکرز نے وجدان کے کیبن کی طرف دیکھا تھا، پر کوئی بھی ان کے کیبن تک نہیں آیا تھا۔ تبھی ان سب کے بیچ سے نکلتا سجاد، وجدان کا پی اے، بھاگ کر آتا فکر سے گویا ہوا تھا۔ ہاں کیا ہوا ہے وجدان، تم ٹھیک ہو؟ ابھی وہ سجاد کو کوئی جواب دیتا جب وہاج پریشانی میں اندر آیا تھا اور سامنے فرش پر پڑا سامان دیکھ کر وہ وجدان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پوچھ کیا تھا۔ ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سرخ آنکھوں میں ہوتی جلن سے وہ آنکھیں بند کرتا بولا تھا، جس پر وہاج کو اس کی حالت دیکھ کر پریشانی ہوئی تھی۔ آپ گھر چلے جائیں، باقی میں اور عادل بھائی دیکھ لیں گے۔ وجدان کی طبیعت بگڑتے دیکھ وہاج نے اسے آسان سا حل دیا تھا، جس پر وہ مثبت میں گردن ہلاتا اپنا سامان اٹھاتا ہوا بغیر وہاج کو دیکھنے کی غلطی کیے نکلا تھا۔ اس وقت وجدان خود سے بھی نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہاج تو پھر افق کا بھائی تھا، وہ افق جسے اس نے اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے چنا تھا، اور اب وہ اپنے مقصد میں ہر قدم پر کامیابی پانے کے بعد وہ اس کی معصومیت سے ڈر رہا تھا جو اس سے سچی محبت کا اظہار کر گئی تھی بغیر مقابل کی اصلیت جانے۔ کیا ہوا وہاج؟ وجدان کو جاتے دیکھ عاصم نے وہاج کے پاس آتے پوچھا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی وجدان کی، گھر گیا ہے۔ وجدان کے بارے میں سوچتے وہاج نے مختصر سا جواب دیا تھا، وہ تو ٹھیک ہے، پر کیا ہوا تھا آفس میں؟ میں میٹنگ روم میں تھا تو پتہ نہیں چلا، پر جب باہر آیا تو سنا سب سے۔ وہاج کے کھوئے کھوئے انداز پر ماتھا پیٹتے عاصم نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ تو میں سوچ رہا ہوں، کیا ہوا تھا؟ عاصم کو دیکھتے وہاج نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ تم رہنے دو سجاد۔ وہاج کے سر پر چت لگاتا عاصم وجدان کے پیے کو آواز لگاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ سر، وہ سر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید انہیں چکر آ گیا تھا۔ عاصم کے بلانے پر ہی سجاد سمجھ گیا تھا وہ جس بارے میں بات کرے گا، تبھی وہ اس کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے جواب دیتا گردن ہلا گیا تھا۔ پھر تم نے اسے اکیلا کیوں بھیجا؟ سجاد کی چکر آنے والی بات پر عاصم کو وجدان کا اکیلے جانا مناسب نہیں لگا تھا۔ تم یہ صاف کرواؤ، میں دیکھتا ہوں۔ سجاد کو خاموشی سے گردن جھکائے دیکھ عاصم اسے وجدان کی کیبن کی صفائی کروانے کا کہتا مڑا تھا۔ دل کو بہت کشادہ کر لیا، کیا زمانے بھر سے وعدہ کر لیا، کیا سچ مچ جدائی مجھ سے کر لی؟ بہت دل کو کشادہ کر لیا، کیا زمانے بھر سے وعدہ کر لیا، کیا تو کیا سچ مچ جدائی مجھ سے کر لی، تو کیا خود کو بھی آدھا کر لیا، کیا ہنر مندی سے اپنے دل کا صفا میری جان تم نے سادہ کر لیا، کیا جو یکسر جان ہے اس کے بدن سے کہو کچھ استفادہ کر لیا، کیا بہت کترا رہے ہو مغبجوں سے گناہ ترک بادہ کر لیا، کیا یہاں کے لوگ کب کے جا چکے ہیں سفر جادو بجادو کر لیا، کیا اٹھایا ایک قدم تو نے نہ اس تک بہت اپنے آپ کو مادہ کر لیا، کیا بہت اپنے کو مادہ کر لیا، کیا تم اپنی کچھ کلا ہی ہار بیٹھی بدن کو بے لبادہ کر لیا، کیا بہت نزدیک آتی جا رہی ہو بچھڑنے کا ارادہ کر لیا، کیا آپ کہیں جا رہے ہیں سہراب؟ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے سفید کاٹن کے سوٹ پر بلو کلر کا بریزیئر پہنے ہاتھ
बालों को सेट करते सोहराब साहब को देखती महरीन चौहान ने बगौर देखा, जो पिछले कई दिनों से ऐसे ही तैयार होकर जाते देख रही थी। पर आज जब इनसे ये तैयारी बर्दाश्त ना हुई तो पूछ ही लिया, हाँ खैरियत, कोई काम था? खुद पर क्लोन लगाते सोहराब साहब ने अपने ठीक पीछे खड़ी महरीन के आईने में नजर आते अक्स को देखते हुए कहा था, जी था तो, पर अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं मैं चाचू को कह देती हूँ। सोहराब चौहान की तैयारी पर उसे हैरानगी से देखती महरीन ने बात बढ़ाने को कहा था। सोहराब चौहान की तायाजाद होने की वजह से वो बखूबी जानती थी कि कैसे सोहराब चौहान की लगाम कसनी थी। तभी वो शादाब चौहान को बीच में लाई थी। क्या काम है मुझे बताओ, बाबा साईं को क्यों परेशान कर रही हो? महरीन के शादाब चौहान का नाम लेने की देर थी कि सोहराब चौहान के हाथ पैर फूले थे। वो आतिफ, आदिल और आसिम के स्कूल जाना था, उनके उस्ताद ने बुलाया है। पर आप जा रहे थे तो सोचा चाचू को कह दूं। शादाब चौहान के नाम पर सोहराब के बिगड़े रंग देखती महरीन ने उसे वजह बताई थी। मैं खुद जाऊंगा, कब जाना है मुझे बताओ? आज ही जाना है। एक नजर महरीन पर डालते सोहराब ने अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखा था। आज उसने गुलबहार से मिलने का वादा किया था, जिसके लिए वो तैयार हुआ था, पर ऐन वक्त पर स्कूल जाने का सुनकर वो परेशान हुआ था। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप चले जाएं, मैं और चाचा साईं चले जाएंगे। सोहराब को परेशानी में मुबतला देख महरीन ने उसे मशवरा दिया था। नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मेरे बच्चों के स्कूल, तुम तैयार हो जाओ फिर चलते हैं। महरीन की बात पर मुस्कुराकर महरीन को तैयार होने का कहते वो गुलबहार से मिलने का इरादा मुलतवी करते गोया हुए थे, जिस पर महरीन गर्दन हिलाती तैयार होने के लिए बढ़ी थी। यार महरीन जल्दी करो। पिछले 20 मिनट से महरीन तैयार होने के नाम पर ड्रेसिंग रूम में बंद थी, जब सोहराब चौहान ने टाइम देखते उसे पुकारा था। जी सोहराब चलें। सामने सोफे पर बैठे सोहराब चौहान मोबाइल में मसरूफ थे जब महरीन ने बाहर आते उसे चलने का कहा था, और वही महरीन को देखकर वो साकित हो गए थे। आज न जाने वो कितने साल बाद दिल लगाकर तैयार हुई थी। तभी सोहराब चौहान उसे देखते मबहूत हुए थे। सब्ज रंग के कपड़ों पर हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहने, वो अपने होंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए, आज अपने लंबे आबशार जैसे बाल खुले छोड़े हुए थी। गहरी नमदार पलकें ऊपर उठाए वो मुस्कुराती नजरों से सोहराब चौहान को ही देख रही थी, जो उसे आतिफ की पैदाइश के बाद पहली बार ऐसे तैयार हुए देख रहे थे। वरना तो सारा दिन बच्चों में खुद को उलझाए रखती थी। महरीन अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जो सोहराब चौहान को बगैर किसी मन्नत मुराद के मिली थी, उसके बाबा साईं की ख्वाहिश पर। जब महरीन से सोहराब की बात पक्की हुई थी, तब सोहराब चौहान ने बगैर किसी एतराज के अपने बड़ों के फैसले पर सर झुकाया था, जो उसके हक में बेहतर ठहरा था। महरीन ने सोहराब चौहान समेत उसके घर और माँ बाप को अपने माँ बाप से इज्जत देकर सबसे अमीर आदमी बना दिया था। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आतिफ, आदिल, आसिम और वहाज के बाद वो तो खुद को जैसे भूल ही गई थी, और अब दिन ब दिन सोहराब को खुद से बेगाना होते महसूस करती महरीन ने वापस अपनी जून में आने का सोचा था। पर शायद अब काफी देर हो चुकी थी। वो जिस शोहर को वापस अपनी तरफ माइल करना चाहती थी, वो तो किसी और की तरफ माइल होता दिल लगा बैठा था। चलें सोहराब। सोहराब चौहान को अपनी तरफ देखते हुए पाकर महरीन ने आगे बढ़ते चुटकी बजाते उसे कहा था। होंठ से ऊपर आंख से नीचे रुखसार पे वाक़या, क्या आज भी हैं चर्चे तेरे इसी दिल के। महरीन को देखकर सोहराब चौहान खुद पर इख्तियार खोते उसके चेहरे के नकूश छूते हुए बोले थे, जिस पर वो शर्म से गर्दन झुका गई थी। खैर में इतनी तैयारी की है? हवास में लौटते सोहराब चौहान महरीन का हाथ पकड़ते मोहब्बत पाश लहजे में गोया हुए थे, जिस पर वो मुस्कुराई थी। बस ऐसे ही सोचा आज स्कूल से वापसी पर हम कुछ वक्त साथ गुजार लें। मुस्कुराकर सोहराब चौहान का कॉलर दुरुस्त करती महरीन ने कहा था। तो फिर वहाज का क्या होगा? तुम उसे भी साथ लेकर चलोगी? महरीन की बात पर मुस्कुराते सोहराब चौहान उसे वहाज के बारे में पूछते टोंट किया था, जो अपने बेटों के लिए खुद को और शोहर को भूल गई थी। सोहराब आप भी ना? वो आज चाचा साईं के साथ डेरे पर गया है। सोहराब चौहान का तंज समझती महरीन ने खफी से उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहा था, जिस पर सोहराब चौहान का बुलंद और बाग कहका गूंजा था। इसका मतलब पूरी तैयारी के साथ आई हो मुझे घायल करने? चेहरे पर आए बाल पीछे करते सोहराब चौहान ने गंभीर लहजे में कहा था, जिस पर वो शर्माई थी। यार महरीन, तुम आज सच में मुझे मारने का इरादा रखती हो क्या? महरीन के शर्माने पर सोहराब चौहान ने थोड़ी पकड़ते उसका चेहरा अपने सामने किया था, जिस पर वो नफी में गर्दन हिला गई थी। बिल्कुल 7 साल पुरानी महरीन लग रही हो, जैसे हमारी शादी कल ही हुई हो, मेरी शर्माती हुई खूबसूरत दुल्हन। महरीन की पेशानी पर अकीदत से बोसा देते सोहराब चौहान ने दिल से तारीफ की थी। मैं तो हमेशा से ही वही महरीन हूँ सोहराब, पर आप बदल गए, आप बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहे। सोहराब चौहान की आंखों में अपने लिए वही इज्जत और मोहब्बत देखती महरीन ने न चाहते हुए भी शिकवा किया था। नहीं, मैं आज भी वही सोहराब चौहान हूँ
जिसे देखकर तुम किचन से निकलती नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए हमेशा वही सोहराब चौहान रहूंगा जिसने पूरे दिल से तुम्हारी जिम्मेदारी संभाल ली थी और तुम्हें अपने बच्चों की मां बनने पर मुबारकबाद भी दी थी और कहा था कि मुझे बेटी चाहिए थी। महरीन के बालों से खेलते सोहराब चौहान ने उसकी शर्मीली तबीयत याद करते उसे आतिफ की पैदाइश पर सबसे पहले मिलने पर अपने बेटे की मां बनने की मुबारकबाद दी थी, जिस पर महरीन के सर पर खड़ी दाई अम्मा ने भी उसके कान खींचे थे। मुझे अच्छे से याद है। फिर बेटी तो अभी भी नहीं हुई हमारी। सोहराब बस करें, हमें देर हो रही है। सोहराब चौहान की बातों पर मुस्कुराती महरीन ने उसके सीने पर सर रखा था, जिस पर वो उसके कान के करीब सरगोशी नुमा बोले थे। जिस पर शर्म से लाल होती महरीन ने उसे मसनूई खफकी से कहते हुए चलने का कहा था। महरीन के शर्माने पर कहका लगाते सोहराब चौहान ने महरीन के साथ चलने का इरादा करते उसका हाथ थामा था। वजी मेरी जान, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आयमा बेगम को वापस आए 2 घंटे हो गए थे, जब से वो अकेली बैठी बोर हो रही थी कि उन्हें सामने बाजू पर कोट डाले थका थका सा वजदान आता दिखाई दिया था, जिसे देखते ही वो भागकर कहती वजदान को गले लगा गई थी। मॉम, आप कब आई? आयमा बेगम से मिलते वजदान ने खुशी से पूछा था। 2 घंटे हो गए हैं, तुम्हारा ही इंतजार करती थक गई हूँ अब तो। वजदान के हाथ से उसका कोट लेती आयमा बेगम उसे अपने साथ लेती सोफे की सिमत पड़ी थी। तो मुझे तो बताया होता ना मॉम, मैं आपको रिसीव करने आता। आयमा बेगम को खफी से देखते वजदान ने शिकवा किया था। तुम्हारे डैड से बात हुई तो पता चला तुम काम में मसरूफ हो, इसलिए तंग नहीं किया। वजदान की मोहब्बत पर प्यार से उसका चेहरा देखती आयमा बेगम ने मुस्कुराकर कहा था। और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? वजदान के चेहरे को बगौर देखती आयमा बेगम ने पूछा था। बस अच्छा चल रहा है मॉम। आयमा बेगम के पूछने पर वो सोफे की बैग से टेक लगाता थके थके लहजे में गोया हुआ था। और मेरा काम कैसा चल रहा है? वजदान के सर में हाथ फेरती आयमा बेगम ने अपने मतलब का पूछा था, जिस पर वजदान ने अपनी सुर्ख आंखें खोलते उन्हें देखा था। 1 महीना होने को आया है वजी तुम्हें पाकिस्तान आए, और अब तक तुमने उस एक छोटी सी लड़की को अपने हाथ में नहीं किया। ये टास्क इतना मुश्किल है या फिर तुम इसे सीरियस ही नहीं ले रहे? वजदान जो खामोशी से अपनी आंखें बंद करता आयमा बेगम को सुन रहा था, पर उनकी आखिर में कही बात पर वो शर्मिंदा होता सीधा होकर बैठा था। मॉम, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है वजी? मुझे लगा था मेरी वापसी तक तुम अपना काम कर चुके होगे। मैं गई 2-3 दिन के लिए थी, पर मैं आज पूरे 1 हफ्ते बाद लौट रही हूँ और मेरा बेटा वहीं खड़ा है जहाँ मैं उसे छोड़कर गई थी। आयमा बेगम की बात पर वो सर झुकाता बोला था, पर आयमा बेगम ने बगैर उसकी कोई भी बात सुने गुस्से से दिखते अपना सर पकड़ते हुए वो हिज़ियानी हुई थी। और वही उनकी ये हालत देख वजदान ने भी यकीनी से उन्हें देखता परेशान हुआ था। मॉम रिलैक्स, मैं उसे अपनी बातों में ले चुका हूँ, पर जैसा आपने कहा वो वाकई में मुश्किल टास्क है। वो इतनी जल्दी बातों में आने वाली लड़की नहीं है। उसके लिए मुझे उसे थोड़ा स्पेस, थोड़ा एतबार में लेना होगा। आयमा बेगम की हालत देख वजदान ने उन्हें गले लगाते पुरसुकून करने की कोशिश की थी। वजी मुझे नहीं पता, तुम बस इस लड़की को कैसे भी करके अपनी बातों में लो या फिर उसे अगवा कर लो और उसकी इज्जत को पामाल कर दो। मैं बस उसके बाप को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मॉम? क्या मॉम? तुम्हें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए वजी। तुम्हारी तो कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो तुम्हारे लिए एक लड़की के साथ रात गुजारना कोई मुश्किल थोड़ी है। वो जो इस खुशी में वापस लौटी थी कि वजदान ने उनके कहे के मुताबिक अब तक तो उफक को अपनी बातों में लेते इस्तेमाल कर लिया होगा, पर वजदान की बातें सुनकर उन्हें गुस्सा आया था और इसी गुस्से में वो वजदान को वो करने का कह रही थी जो वजदान ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तभी वो आयमा बेगम की गलत बयानी पर हैरानगी से उन्हें देखता हुआ बोला था, पर आयमा बेगम को तो न जाने क्या हुआ था जो आज उसे बोलने ही नहीं दे रही थी, बस अपनी कहती वजदान को हैरान कर रही थी। मॉम, क्या हो गया है आपको? मैं मानता हूँ मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी भी किसी लड़की के साथ करने का सोच भी नहीं सकता। क्या आपको अपनी परवरिश पर यकीन नहीं? बेयकीनी से आयमा को देखते हुए वजदान ने अफसोस से गर्दन हिलाते हुए कहा था, जिस पर आयमा होश में आई थी। नहीं वजी, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। वजदान को बेयकीनी से अपनी तरफ देखते हुए पाकर आयमा बेगम ने बात को संभालना चाहा था जो वो अपने गुस्से में बिगाड़ चुकी थी। वजी मेरी जान, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। मैं पागल हो रही हूँ फिर से। वो शख्स मुझे भूलता नहीं है जिसकी वजह से मैंने कई साल वहाब की नाराजगी झेली है। वजी मुझे माफ कर दो, मैं ये कहना नहीं चाहती थी। वजदान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेती आयमा बेगम ने बहते हुए आंसुओं के दरमियान कहा था, पर वजदान को चुप देख वो उसके आगे हाथ जोड़ती अपने कहे अल्फाज की माफी मांग गई थी। मॉम, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ। बच्चों से माँ बाप माफी नहीं मांगते। आयमा बेगम की बंधे हुए हाथ पकड़ते वजदान ने उन्हें गले लगाते हुए कहा था, मैंने वादा किया था आपसे,
موم، میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا جس نے آپ کے اور ڈیڈ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی، جس کی وجہ سے آپ نے اتنی تکلیفیں سہی۔ روتی ہوئی آئمہ بیگم کے بالوں کو سہلاتے ہوئے وجدان نے انہیں اس 12 سال کے بچے کا کہا وعدہ یاد دلایا تھا، جس کے آسرے پر آئمہ بیگم نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا۔ آخر کو بڑے ہو کر ان کے دل میں جلتی آگ بجھانے کا جگرا رکھتا تھا۔ وجی موم نو۔ وجدان کی باتوں پر سیدھی ہوتی آئمہ بیگم نے ایک بار پھر سے اس معافی مانگنی چاہی تھی، جس پر وجدان نے ان کے آنسو صاف کرتے سختی سے منع کیا تھا۔ میرا پیارا بچہ، پیار سے وجدان کی پیشانی چومتی آئمہ بیگم نے وجدان کو خود سے ناراض نہ ہوتے دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا، چلے میں آپ کو روم تک چھوڑ کر آتا ہوں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ آئمہ بیگم کو سہارا دے کر کھڑا کرتا وجدان انہیں اپنے ساتھ لیتا ان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی آئمہ، مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپاتے ہوئے؟ ہاتھ میں موجود تصاویر کو وہ آئمہ کے منہ پر پھینکتے ہوئے دھاڑے تھے، جس میں وہ ایک 2 ماہ کی بچی کو گود میں لیے مسکرا رہی تھی، تو کہیں وہ کسی آدمی کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی، تو کہیں وہ فحش کپڑوں میں ملبوس ہنستی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور کہیں کھیل کر آتے وجدان نے وہاب صاحب کے کمرے میں جانے کے لیے دوڑ لگائی تھی، پر ان کے کمرے سے چلانے کی آوازیں سنتا وہ خوف سے وہیں رکا تھا۔ وہاب، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک نظر تصویروں پر ڈالتی آئمہ کا رنگ اڑا تھا۔ آخر کو اس کے لاکھ چھپانے کے باوجود سچ وہاب صاحب کے سامنے آ ہی گیا تھا۔ تو کیا ہے یہ بتاؤ مجھے؟ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوئی آنکھوں سے وہ آئمہ کو دیکھتے گویا ہوئے تھے، جس پر آئمہ کو بولنا مشکل لگا تھا۔ وہاب، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خود میں حوصلہ پیدا کرتی آئمہ بیگم وہاب کی سمت بڑھتی ان کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی تھی، جھوٹ وہ نہیں تم بول رہی ہو۔ اول روز سے غصے سے آئمہ کا ہاتھ جھٹکتے وہاب نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ موم رو رہی ہیں؟ وہاب صاحب کے چلانے پر جہاں وہ رو رہا تھا، آئمہ بیگم کے رونے کی آواز سنتا وجدان کے رونے کی آواز سنتے وجدان کے رونے میں روانگی آئی تھی۔ دور رہو آئمہ، مجھے افسوس ہے میں نے ایک فحاشہ عورت سے محبت کی جو مجھ سے شادی کے بعد بھی دوسرے مردوں سے تعلقات رکھتی ہے۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے وہاب نے اسے گالی دی تھی، جس پر آئمہ نے آنسوؤں سے لبریز چہرے سے اسے دیکھا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں وہاب، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں مانتی ہوں میں نے ماضی میں بہت غلطیاں کی ہیں، پر یہ سب جھوٹ ہے۔ وہاب کے آگے ہاتھ جوڑتی آئمہ نے تصویروں کی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر وہ اسے حقارت سے دیکھتے نگاہ موڑ گئے تھے۔ تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ لوگ ہنسیں گے مجھ پر کہ میری بیوی میری غیر موجودگی میں غیر محرم پر عنایتیں کرتی ہے۔ غصے سے پاس پڑی ٹیبل پر رکھے لیمپ کو وہ آئمہ کی طرف پھینکتے ہوئے چلائے تھے کہ آئمہ بیگم کی ڈر سے چیخ نکلی تھی، اور وہیں باہر کھڑے وجدان نے بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتے روم لاک کیا تھا۔ وہاب، ایک بار میری بات سن لیں۔ وہاب کو غصے میں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دیکھ آئمہ نے ان کے پیروں کے پاس آتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہاب نے خون چھلکتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آج مجھے میرے بیٹے کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ مجھے کیا کہنا چاہ رہا تھا، مجھے آج احساس ہو رہا ہے۔ وہ کیوں تم جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری عزت کے لیے جس کی کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ آئمہ کے بال پکڑتے وہاب نے شاویز کی باتیں سوچتے ہوئے تکلیف دہ لہجے میں کہا تھا، وہاب، وہ آدمی کوئی غیر محرم نہیں ہے، وہ میرا پہلا شوہر ہے، اور بس۔ آئمہ، اب اور جھوٹ نہیں، میں تمہاری ساری اصلیت جان گیا ہوں کہ تم کیا تھی اور کیا ہو۔ وہ بچی، وہ ناجائز تھی نا، تبھی تم اس معصوم کو پتہ نہیں کہاں پھینک کر آئی ہو۔ وہاب صاحب کے پیر پکڑتی آئمہ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہاب صاحب دھاڑے تھے، اور وہ خوف سے کانپتی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب وہاب نے اس بچی کی بات کی تو وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ارے بالکل صحیح تھا میرا فیصلہ کہ مجھے تم جیسی عورت سے کوئی اولاد نہ کرنے کا کہا تھا۔ تم نے تو پہلے ہی ایک بچی کو پتہ نہیں کس کے حوالے کیا، پیدا کر کے تمہارا کیا بھروسہ، کل جو تم میرے بچے کو بھی بیچ دیتی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی وہاب نے آئمہ کو اچھے سے یہ سمجھا دیا تھا کہ اسے وجدان اور شاویز کے علاوہ اور اولاد کی ضرورت نہیں ہے، جس پر آئمہ کو برا تو لگا تھا، اور اس نے وہاب کو منانے کی کوشش بھی کی تھی، پر وہاب اپنی بات پر قائم رہتا اسے وجدان کے ساتھ اچھے سے رہنے کا کہتا، یہ برابر کرا گیا تھا کہ اگر وہ اس سے پیار محبت سے رہے گی تو اسے وہاب سے بھی پیار محبت اور بے تحاشا عزت ملے گی۔ میں نے اسے اس کی جگہ پر چھوڑ دیا تھا، وہ جن کی امانت تھی، میں نے اسے ان کے حوالے کیا۔ وہاب، آنسوؤں کے درمیان میں کہتی آئمہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھی۔ کتنے لیے تھے اس آدمی سے تم نے؟ تعصب سے آئمہ کے نکلے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے وہاب نے سخت گیر لہجے میں پوچھا تھا، جس پر آئمہ نے شرمندگی سے نظر جھکائی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ زندگی میں اب اس کے ماضی کی کوئی جھلک نہیں ہوگی، پر آج اس شخص نے وہاب کے سامنے
उसकी सारी सच्चाई बताते उसे और उसकी जिंदगी में पहले दिल से निभाए रिश्ते को खत्म कर दिया था। वहाब प्लीज नहीं। क्यों नहीं? मुझे भी तो पता चले कितने में बिकने वाली हो तुम। वहाब के आगे हाथ जोड़ती आयमा ने शर्मिंदा होते कहा था, जिस पर वो गम और गुस्से से हंसता हुआ पूछ रहा था। लहजे में मान और मोहब्बत के टूटने का दुख था जो वहाब के दिल को छलनी किए हुए था। वहाब? क्या वहाब? हाँ, ऐसे ही इन मर्दों को पुकारती होगी तुम? गुस्से से उसे ठोकर मारते वहाब ने खड़े होते हुए कहा था। आयमा की आंखों में आंसुओं और सच्चाई को देख वहाब को अपने दिल की बेईमानी लगी थी। जब ही वो आयमा से दूर होता खिड़की में खड़ा हुआ था। वहाब, एक बार मेरी बात सुन ले। वो सब पहले था, अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके साथ मुखलिस हूँ। वो सब मेरी मजबूरी थी, पर अब मैं खुद को इस जहन्नुम से निकाल चुकी हूँ। वहाब साहब के पीठ देखती आयमा ने टूटे फूटे लहजे में कहा था, जिस पर वहाब साहब के दिल ने उसे यकीन करने का कहा था, पर वो अपने दिल की ना सुनते आयमा की तरफ से कान बंद कर गए थे और ऐसे ही रोती बिलखती आयमा को छोड़ते हुए वो दरवाजा जोर से बंद करते निकले थे। वहाब प्लीज। वहाब साहब के पीछे भागती आयमा ने उसे रोकने की कोशिश की थी, जो बगैर उसकी सुने घर से निकल गया था। मॉम। वहाब साहब के जाने का यकीन करने के लिए बाहर आते वजदान ने सीढ़ियों में बैठी आयमा के कंधे पर हाथ रखते उसे पुकारा था। क्या हुआ आपको? आयमा की उजड़ी हालत देख वजदान को रोना आया था। तभी वो उसके पास आता बैठता पूछ गया था और वही किसी अपने की तलाश में बैठती आयमा का जब टूटा था और वो वजदान को गले लगाती फूट फूट कर रोई थी। वजी, मुझे माफ कर दो। वजदान को सीने से लगाते हुए आयमा ने रोते हुए उससे माफी मांगी थी, जो उसके और वहाब साहब के बीच हुई बात से सिरे से ही नावाकिफ था। उसे तो लगा था शायद वहाब ऐसे ही नाराज थे, पर आयमा का रोना उसे भी रुला रहा था। वजदान, मैंने तुम्हें दिल से अपना बेटा माना है, सिर्फ कहा नहीं है। वजदान की पेशानी पर बिखरे बाल साइड करती आयमा ने उसे प्यार किया था। ये सच ही था कि वहाब साहब के कोई और बच्चा ना करने की बात पर उसे तकलीफ तो हुई थी, पर वो वजदान को वहाब साहब के मोहब्बत पाने के लिए प्यार करती थी। पर कब वो उनके दिल के करीब हुआ उसे खुद नहीं पता चला था। मॉम, क्या हुआ है? मासूमियत से पूछते वजदान ने आयमा के आंसू पहुंचते हुए कहा था, जिस पर आयमा ने नम आंखों से वजदान को देखा था। वजी, तुम्हारे डैड मुझे गलत समझ रहे हैं। वजदान को अपने और वहाब के बीच हुई गलत फहमी दूर करने के लिए इस्तेमाल करने का सोचती आयमा मुस्कुराई थी। आखिर को वजदान ही उसे यहाँ टिकाए रख सकता था। तभी वो वजदान का हाथ पकड़ती उसे अपने साथ कमरे में ले गई थी। हेलो वजदान, हाशमी से बात हो सकती है? अपनी सोचों में गुम वजदान ने बजते फोन की स्क्रीन देखे बगैर कॉल अटेंड की थी, जिस पर जब उसके पूछने पर उफक की खूबसूरत मासूम आवाज उसके कानों से टकराई थी। उफक। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद उसे उफक की आवाज ने सुकून बख्शा था। आपको याद नहीं आई मेरी? आज सुबह हॉस्टल में बात होने के बाद वजदान ने दोबारा उससे राब्ता नहीं किया था, जिस पर बेचैन होती उफक ने खुद ही उसका नंबर डायल किया था और अब मासूम सा शिकवा भी कर गई थी, जिस पर वजदान के लबों पर मुस्कुराहट आई थी पर सोचा तुम हॉस्टल होगी। बालकोनी से गुजरता अंदर आता हुआ बोला था, पर मैं तो वापस आ गई थी, आपने पूछा ही नहीं। वजदान की बात पर मुस्कुराकर उसे बताती उफक ने चांद को देखा था। अच्छा, क्यों? बस मुझे वहां नहीं रहना था और पापा समझ गए और वो मुझे वापस ले आए। उफक की बातों पर मुस्कुराता हुआ वजदान सोफे पर लेटने के अंदाज में बैठा था कि सोहराब चौहान के जिक्र पर उसका हलक कड़वा हुआ था। उफक, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सोहराब चौहान के जिक्र पर वो अपने लहजे में आई नफरत को दबाता उफक से मिलने की फरमाइश कर गया था, जिस पर उफक खामोश हुई थी। क्या हुआ, एतबार नहीं? नहीं, वो है तो आपसे बात कर रही हूँ, कल हम मिलते हैं। उफक की खामोशी समझते वजदान ने उसका एतबार आजमाया था, जिस पर उफक ने उसे मिलने के लिए हामी भरी थी। चलो फिर सो जाओ जाकर, मैं भी आराम करता हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने की खुशी में मुझे तो नींद आने वाली नहीं। आई लव यू, मोहब्बत पाश लहजे में कहते वजदान ने उफक को सोने का कहते कॉल डिस्कनेक्ट की थी और आंखें सख्ती से बंद कर गया था। और वहीं आसमान पर रोशन चांद को देखती उफक खुद से शर्माई थी। हम करेंगे तो निभाएंगे उम्र भर, ऐसी वैसी तो मोहब्बत नहीं होती हमसे। ये भी नहीं यार, एक भी ड्रेस नहीं है मेरे पास। वजदान से मिलने की तैयारी में परेशान उफक अपनी सारी वार्डरोब खाली कर चुकी थी, पर उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनना है और क्या नहीं। उफो तुम। सुबह से उफक को अपने कमरे में बंद देख मशल उसे बुलाने के लिए आई थी, पर दरवाजे से अंदर झांकने पर वो उफक के रूम की हालत देखकर हैरान हुई थी। ये क्या किया है लड़की? पूरे कमरे में फैले उफक के कपड़े देख मशल ने हैरत से मुंह खोले उसे देखा था, जो परेशान से शक्ल बनाए बीच में बैठी। भाभी, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मशल को देखती उफक ने रोनी शक्ल बनाते हुए कहा था, जिस पर मशल ने माथा पीटा था। तो ये सब क्या है उफक? ये तुम्हारे कपड़े ही हैं।
कमरे में आती मशल ने जमीन से उफक की शर्टें उठाते हुए कहा था, ये सब पुराने हैं, कोई अच्छा सा न्यू ड्रेस नहीं है मेरे पास। अपने पास पड़े कपड़े दूर फेंकती हुई उफक ने दबे दबे गुस्से में कहा था, अब तुम पहनती ही ऐसे कपड़े हो तो यही होंगे ना, रंग बिरंगी जीन्स और शर्टों की तरफ इशारा करती मशल ने उफक के पास बैठते हुए कहा था, वो ठीक है पर ये सब पुराने हो गए हैं। मशल की बात पर वो अपनी पसंद से लिए गए लड़कियों के कपड़े के नाम पर सारे लड़कों जैसे कपड़े थे। कहीं जाना है क्या, वो भी किसी खास से मिलने? उफक की बेचैनी और हालत से अंदाजा लगाती मशल ने उसे आंखें छोटी करते हुए पूछा था। नहीं, हाँ मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है और मेरे सारे कपड़े पुराने हैं। मशल की बात पर डगमगाती उफक अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरती बोली थी, रिलैक्स करो उफो, कोई भी पहन लो, जाओ, कौन सा तुम्हारी दोस्तों ने कुछ कहना है? उफक को बिला वजह परेशान होते देख मशल ने उसे रिलैक्स होने का कहा था। नहीं भाभी, वो न्यू ड्रेसेस में होंगी। मशल से नजर चुराती उफक ने झूठ बोला था। तो ये न्यू तो है, ये हम पिछले हफ्ते ही तो लेकर आए थे। उफक की साइड पर पड़ी ब्राउन कलर की शर्ट उठाती मशल ने उसे दिखाई थी। नहीं भाभी, पर मुझे ये नहीं पहननी। मशल के हाथ से शर्ट लेती उफक ने उसे गोल बॉल बनाते हुए गुस्से से दूर फेंका था। अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों कर रही हो तुम, यहाँ से उठो। उफक को गुस्सा करते देख मशल ने उसे बड़ी बहनों की तरह समझाया था, तुम यहाँ बैठो, मैं देखती हूँ, इनमें से कोई ड्रेस नहीं पहनना तो फिर हम शॉपिंग पर चलते हैं। शॉपिंग का टाइम नहीं है भाभी, मुझे 1 घंटे तक वहाँ पहुँचना है। उफक का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाती मशल ने शर्ट्स उठाते हुए उसे मशवरा दिया था, जिस पर उफक ने परेशानी से दीवार पर नस्ब घड़ी में टाइम देखते हुए कहा था, जहाँ 12:30 का वक्त हो रहा था और उसे 1 बजे हर हाल में विजदान के बताए गए एड्रेस पर पहुंचना था। वो पहले ही उसे काफी टाल चुकी थी। उफक ये कैसी रहेगी इस पैंट के साथ? नो, ग्रे कलर की जीन्स के साथ वो उसे ब्लैक शर्ट दिखाती बोली थी, जिस पर उफक ने नम आंखों से देखते मना किया था। अच्छा ये देखो, बल्कि ऐसा करो, इसको ट्राई करो। बाज दफा ऐसा होता है जो चीज अच्छी नहीं लगती वो पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। सारे कपड़े इकट्ठे करके बेड पर रखती मशल ने उसे इनमें से एक पैंट शर्ट निकाल कर दी थी, जिस पर उफक ने मना करना चाहा था, पर वो बगैर उसकी सुने उसे जबरदस्ती थमाती ट्राई करने पर जोर देती बोली थी, जिस पर उफक की बात मानती चेंज करने के लिए गई थी। अब बताओ कैसी लग रही है? बाथरूम से निकलती उफक के ड्रेसिंग के सामने लाती मशल ने मुस्कुराती हुई नजरों से उसे देखते हुए पूछा था, जिस पर वो मुस्कुराई थी। लव यू यार भाभी। व्हाइट पैंट के साथ फुल स्लीव व्हाइट ही शर्ट वाकई में उसे खूबसूरत बना रही थी, जिस पर वो खुशी से मुड़ती मशल के गले लग गई थी। अब बताओ कोई और मदद चाहिए? जी मेरे बाल बांधे। उफक के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख मशल ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा था, जिस पर वो मस्बत में गर्दन हिलाती हुई बोली थी, जिस पर मशल ने उसे कंधों से पकड़ते बिठाया था। ये लो बन गए बाल भी। मशल, मशल कहाँ हो? तुम्हारे भाई याद कर रहे हैं। उफक के बाल बांधती मशल आतिफ की आवाज सुनती मुस्कुराई थी। मशल भाभी आप जाएं, बाकी मैं कर लूंगी। ये अपर पहन लेना इसके साथ। आतिफ को बार बार बुलाते देख उफक ने उसे जाने का कहा था, जिस पर वो बेड पर पड़ा अपर उसे पहनने का कहती मुड़ी थी। परफेक्ट उफक चौहान। आई लैशेस पर मस्कारा लगाती उफक ने अपने सरापे को खुद ही सराहा था। आज जिंदगी में पहली बार वो डेट पर जा रही थी, किसी पर यकीन करके। ओ शिट, भाभी शूज तो बताकर ही नहीं गई, अब शूज कौन से पहनूं? जूतों का क्या है, वो तो कोई भी अच्छे लगेंगे। बेड पर रखा अपर पहनती उफक ने अपने पैरों को देखते सोचा, पर फिर ही दिल में सोचती उफक ने जूते निकालते पहने थे। चले गुलामदीन? जी बीबी जी। आंखों पर सन ग्लासेस लगाती उफक ने गाड़ी के पास आते गुलामदीन को चलने का कहा था, जो सुबह 10 बजे से सोहराब साहब के कहने पर उफक का इंतजार कर रहा था, जिसे सोहराब साहब ने सख्ती से उफक को छोड़ने और लेकर आने की जिम्मेदारी सौंपी थी। और अब उफक 1 बजे उतरकर नीचे आई थी। कहाँ रह गई हो उफक? पिछले आधे घंटे से उफक का इंतजार करता विजदान अपने हाथ में बंधी घड़ी पर वक्त देखता खुद से गोया हुआ था। वो तो उफक की एक कॉल करने पर ही ऑफिस से निकल गया था कि कहीं वो लेट ना हो जाए और उफक पर गलत इंप्रेशन पड़े, पर अब उसे अपनी बेकदरी पर गुस्सा आया था। गुस्से से पानी का गिलास उठाता वो पीने लगा था कि जब उसे वो सामने से एंटर होती दिखाई दी थी, जिस पर वो आधा पानी का पीता गिलास वापस रख गया था। वो होंठ बेमिसल, वो रुखसार कमाल अस्त, वो आंख, वो अब्रुए तरहदार कमाल अस्त। हा। सामने जल्दी में चलती उफक का बगौर जायजा लेते हुए विजदान ने उसके पैरों की तरफ देखा था, और वही विजदान को हंसी आई थी जो अपने खूबसूरत सुनहरे लंबे आधे बालों को हाई पोनी टेल में कैद किए बाकी कटिंग शुदा बाल माथे पर डाले, व्हाइट पैंट के साथ व्हाइट ही शर्ट पर वो नेट का स्लीवलेस रेड कलर का अपर पहने
वो पर्पल कलर के जॉगर्स पहने हुए थी। सॉरी लेट हो गई। एक नजर सामने बैठे इस वजीह शख्स को देखती उफक उसकी टेबल के पास आती बच्चों की तरह कान पकड़कर सॉरी कहती ने माफी मांगी थी। जो गोल्डन ब्राउन कलर के सूट कोट में मलबूस चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहा था। कोई बात नहीं। आवाज में वो साज के गुफ्तार कमाल अस्त, सांसें वो इतर बेज के महकार कमाल अस्त। बच्चों की तरह माफी मांगती उफक विजदान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी, जो कुछ देर पहले गुस्से में था। अब तो पता नहीं वो गुस्सा कहाँ गुम हो गया था। तभी वो उसे बैठने का इशारा करता बोला था। वो कामत दराज के शहगार कमाल अस्त, कांधे पे सजे गेसू खुमार कमाल अस्त। चेयर पीछे करके बैठती उफक के बाल आगे आए थे, जिन्हें वो शर्मिंदा होती हुई पीछे कर गई थी। देखा है कई बार भी हर बार कमाल अस्त, धीमी हो भले तेज वो रफ्तार कमाल अस्त। विजदान की खामोश मगर बोलती नजरों से घबराती उफक ने उसके आगे पानी का रखा गिलास उठाते पिया था। परखा जो मोहब्बत में तो किरदार कमाल अस्त, दिल भी बेरक्स मैं के मिला यार कमाल अस्त। विजदान के देखने से उफक की बेचैनी देख विजदान महसूस कुन मुस्कुराया था। काफी देर कर दी आने में। पानी पीकर गिलास रखती उफक की झुकी नजरों को देखते विजदान ने नरमी से पूछा था, जिस पर वो सोच में डूबती अपने लब कुचलने लगी थी। उफक को अपने लब कुचलते हुए देख विजदान ने हाथ आगे बढ़ाते ठोड़ी पकड़ते उसे रोका था, जिस पर वो मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। वो मुझे नहीं पता था जब किसी से मिलने जाते हैं तो कैसे कपड़े पहनते हैं, इसी में कंफ्यूज थी और लेट हो गई। मासूम सी शक्ल बनाती उफक ने गर्दन झुकाते हुए उसे बताया था, तो मुझसे पूछ लेना था क्या पहनकर आना है, मैं बता देता। उफक के चेहरे को अपनी नजरों के हिसार में रखते विजदान ने शोखी से कहा था, जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी थी। आपको पता है कैसी ड्रेसिंग की जाती है? विजदान की बात समझ आते ही उफक ने फौरन हैरत से उसे देखते हुए पूछा था, जिस पर वो डगमगाया था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझसे पूछती तो मैं अपनी पसंद का कलर बताता। उफक को अपनी तरफ देखते हुए पाकर विजदान ने मुस्कुराकर कहा था, जिस पर वो फकत गर्दन हिला गई थी। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेसिंग में तुम। उफक के खूबसूरत चेहरे को देखते विजदान ने दिल से तारीफ करते हुए कहा था, जिस पर वो मुस्कुराई थी। मुझे लगा था हमारी पहली मुलाकात की तरह तुम आज भी अजीब कपड़ों में आओगी। क्या मतलब? वो मेरी फेवरेट शर्ट है। उफक को मुस्कुराते हुए देख विजदान ने अपनी पहली मुलाकात याद करते उफक के बेढंगे कपड़ों पर टोंट की थी, जिस पर उफक उसे देखते दबी दबी चिल्लाई थी। सच में? उफक के मुंह से फेवरेट सुन विजदान ने हैरानगी से उसे देखा था। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना चाहिए? क्यों? उफक के चेहरे को बगौर देखते विजदान ने उफक का पार्टी लुक याद करते उसे मशवरा दिया था। जैसी ड्रेसिंग तुमने पार्टी में की या फिर जैसी गर्ल्स करती हैं वो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए। पर अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे सबसे अलग लगती हो। उफक के पूछने पर बताता हुआ विजदान उफक को मोहब्बत से देखता बोला था, जिस पर वो मस्बत में गर्दन हिला गई थी। उफक जी। कुछ वक्त खामोशी के नजर हुए थे जब विजदान ने मोहब्बत से उसे पुकारा था, जिस पर वो उसे देखती मुस्कुराई थी। ये क्या है विजदान? गिफ्ट, हमारी मोहब्बत की निशानी। उफक के पूछने पर विजदान ने अपने ब्रेजियर के पॉकेट से बॉक्स निकालते टेबल पर रखते कहा था, जिसे देखती उफक ने नासमझी से पूछा था। उफक से मिलने के लिए आते विजदान ने सोचा तो इसके लिए फूल लेने का था, पर सामने ही ज्वेलरी शॉप देखते विजदान ने उफक के लिए हार्ट शेप पेंडेंट लिया था। पर मैं ये कैसे? ये हमारी मोहब्बत की निशानी समझ लो और इसे पहनकर हमारी मोहब्बत को मान बख्श दो। गोल्ड के पेंडेंट को देखकर उफक को अजीब लगा था। तभी वो विजदान को देखती आहिस्तगी से बोली थी, जिस पर वो टेबल पर रखा उस उफक का हाथ थामता गंभीर लहजे में गोया हुआ था। मैं पहना दूं? उफक की खामोशी से गर्दन झुका लेना उसकी रजामंदी जाहिर कर गया था, जिस पर मुस्कुराता हुआ विजदान अपनी जगह से उठता उफक के पास आते इजाजत तलब करता गोया हुआ था। तुझको है बोल दिया आज से तू मेरा है और इनकार का खाना नहीं रखा मैंने, दिल में आए हो तो ये बात भी दिल में रखना, अब तेरा लौट के जाना नहीं रखा मैंने। उफक के बाल आगे करते विजदान ने पेंडेंट पहनाते उफक के कान के करीब ही शेर पड़ा था, जिस पर विजदान की आवाज सुन उफक के वजूद में लर्जिश तारी हुई थी और वह मुस्कुराता हुआ वापस अपनी जगह आ बैठा था। सर क्या लेंगे आप? मैडम से पूछें। सामने बैठा विजदान उफक के चेहरे पर शर्म से बिखरे रंग देखता मसरूर हुआ था कि दिल ने बस उसे देखने की ही चाह की थी। जब पास आते वेटर ने उसे ऑर्डर करने का पूछा था, जिस पर वो होश में आता बोला था, कुछ भी मंगवा लें। सोच लो, जो मैं ऑर्डर करूंगा तो फिर वही खाना पड़ेगा। विजदान की बात पर भकलाती उफक ने झिझकते हुए कहा था, जिस पर वो शोखी से मुस्कुराता गोया हुआ था।
जिस पर वो गर्दन हिलाती मुस्कुराई थी। फ्रेंच फ्राइज, 2 फ्राइड फिश, इटालियन सैलड, साथ में लेमन जूस। उफक को देखते विजदान ने ऑर्डर किया था। 6 बज गए। लंच करने के बाद उफक और विजदान काफी देर एक दूसरे के बारे में बातें करते रहे थे और अब अचानक से उफक की नजर विजदान की रिस्ट वॉच पर पड़ी तो वो हैरान हुई थी। हाँ, अभी 6 ही बजे हैं। उफक की हैरानगी से पूरी खुली आंखें देख विजदान लापरवाही से कहता कंधे उचकाता बोला था, मुझे घर जाना है, पर अभी क्यों? उफक के अचानक से घर जाने की बात पर विजदान हैरान हुआ था। जिसे उफक से बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा था, पर उसकी इस लापरवाही से कहने पर उफक जाने के लिए खड़ी होती परेशानी से गोया हुई थी। जिस पर उफक को जल्दी करते देख विजदान ने हैरानगी से पूछा था, मैंने पापा को कहा था मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी और मुझे यहाँ 6 हो गए हैं। वापसी पर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। विजदान के पूछने पर उफक ने परेशान कुन लहजे में उसे बताया था, जिस पर वो लब भींच गया था। बड़ी मुश्किल से उसने सोहराब साहब से यहाँ आने की इजाजत ली थी, पर अब अगर वो वक्त पर घर ना पहुंची तो वो उसे कभी कहीं जाने की इजाजत नहीं देते। किसे कॉल कर रही हो? उफक को नंबर डायल करते देख विजदान ने पूछा था। गुलाम दीन को। कौन गुलाम दीन? ड्राइवर। विजदान के पूछने पर उफक ने नंबर डायल करते हुए विजदान को बताया था, जिस पर वो उसके हाथ से फोन ले गया था। उसे क्यों बुला रही हो? मैं छोड़ देता हूँ। उफक के डायल किया नंबर पर जाती कॉल कट करता विजदान मोबाइल अपनी पॉकेट में रखता बोला था, पर आप कैसे? मैं खुद चली जाऊंगी। आप मेरा मोबाइल दें, मुझे कॉल करनी है। विजदान को मोबाइल अपनी पॉकेट में रखते देख उफक ने हैरानगी से उसे कहा था, जिस पर वो नफी में गर्दन हिलाता उसे चलने का इशारा करता बिल की पेमेंट टेबल पर रखता बाहर की सिमत बढ़ा था। विजदान को अपना मोबाइल ना देते देख उफक उसके पीछे हुई थी। काफी देर हो जाएगी। विजदान के इंतजार में खड़ी उफक होटल के बाहर निकलकर आसमान में घुली लाली देखकर उसे रोना आया था। ये दूसरी बार हुआ था कि वो विजदान के साथ थी और शाम के साए ढले घर से बाहर थी। बैठो। पार्किंग से गाड़ी लेकर आते विजदान ने शीशा नीचे करते उफक को बैठने का कहा था, जिस पर वो लब दबाती विजदान के खोले गए फ्रंट डोर को देखती बैठ गई थी। म्यूजिक पसंद है? गाड़ी में छाई खामोशी को विजदान की आवाज ने तोड़ा था, जिस पर वो अपनी उंगलियां मरोड़ती फकत गर्दन हिला गई थी। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब साया जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर है। उफक के हामी भरते ही विजदान ने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया था, जिस पर चलता आतिफ असलम का सॉन्ग सुनकर वो मुस्कुराया था। हम तेरे हो गए या खुदाई इश्क में गुमशुदा दिल जिगर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। गाड़ी में तेज आवाज में चलते गाने के साथ साथ विजदान ने भी गुनगुनाना शुरू किया था, जिस पर उफक ने मुस्कुराते हुए गर्दन झुका ली थी। तू ही तू हर सू, तू ही तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू। गाने के बोल एंजॉय करते विजदान ने गाड़ी की स्पीड स्लो करते साइड मिरर से देखकर टर्न लिया था। कदम इच तेरे असी कलियां बिछाइए, नैन नैना तो चुराए तक के ना मर जाइए। उफक के झुके सर को देखता विजदान मुस्कुराकर उसकी तरफ झुका था, जिस पर वो शाकी नजरों से उसे देख रही थी। विजदान का हर सेकंड पर बात बेबात इजहार मोहब्बत करना उफक को उसकी तरफ खींच रहा था। उसने निगाह से किया सलाम है, दिल में है दर्द सा फिर भी आराम है। उफक की आंखों में देखते विजदान ने दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए उसे देखा था, जो उसकी आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद देखकर सर झुका गई थी, जिस पर विजदान के लबों पर आई खूबसूरत मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। तंग आया ये समा, होश है लापता तेरा दीदार कर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब साया जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर है, लग रहा है आज मौसम और एफएम दोनों को मेरी खबर है। सामने नजर आते आसमान पर बादलों का राज देख विजदान ने एक नजर उफक को देखते हुए कहा था, जिस पर उफक ने पहले उसे और फिर सामने नजर आते आसमान को देखा था, जो विजदान के इजहार की तरह खूबसूरत और दिलनशी लग रहा था। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब साया जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर है। उफक, तुम मुझे मुझसे जुदा कर रही हो, मतलब मैं समझी नहीं। उफक की तरफ झुका विजदान शर्माती हुई उफक को देखता जज्बात से बोझल लहजे में कहता उफक को हैरान कर गया था, जिस पर वो विजदान देखती झिझकते हुए बोली थी, मतलब साफ है मुझ में मैं बाकी नहीं रहा, तुम शामिल हो गई हो मुझ में। सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकते हुए विजदान ने उफक की आंखों में देखते हुए कहा था, जिस पर उफक को उसकी आंखों में देखना मुहाल लगा था। तभी वो निगाहें मोड़ गई थी। हमें देर हो रही है विजदान। विजदान की तरफ से निगाह मोड़ती उफक ने महसूस किया था कि उनकी गाड़ी रुकी हुई है और गाड़ी रुकने पर उफक की हथेलियां पसीने से भीगी थी। मेरा आज तुम्हें घर छोड़ने का इरादा नहीं है। मतलब
افق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وجدان نے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر افق نے خوف سے اسے دیکھتے پوچھا تھا، وہ تو سنا ہی ہوگا تم نے افق بی بی، شام بھی خوب ہے پاس محبوب ہے، عاشقی کے لیے اور کیا چاہیے۔ افق کی آنکھوں میں ڈر دیکھ وجدان نے شوخی سے گنگناتے ہوئے آنکھ دبائی تھی۔ وجدان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وجدان کی باتوں اور لہجے سے ڈرتی افق گاڑی کے ڈور سے جا لگی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو ڈارلنگ؟ تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ سیٹ بیلٹ کھولتا وجدان افق کی طرف بڑھا تھا، تبھی وہ اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ ڈور کھولتی نیچے اترنے لگی تھی، جب وجدان نے برق رفتاری سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اس کی سوچی پر ناکام کیا تھا۔ نو ریلیکس افق، میں مذاق کر رہا